آپ سب تشریف رکھیں. پر جو فرسٹ ٹائمرز ہیں وہ کھڑے رہیں, جو پہلی بار اس چرچ میں آئے ہیں وہ کھڑے رہیں, باقی سب بیٹھ جائیں. پاسٹر ورشپر سیمیل, ان کے فادر یہ بھی پاسٹر ہیں, اور خداوند کی خادمہ ہمارے درمیان موجود ہیں. پشاور سے زوردار تالیاں ان کے لیے بجائیں. اور اسی طرح پیچھے بھی کچھ بہنیں جو فرسٹ ٹائمرز ہیں, پہلی بار آئی ہیں, زوردار تالیاں ان کے لیے بھی بجائیں. بھائی شہباز بھی ہیں. امید ہے آپ لوگ آتے رہیں گے, اور ہمارے چرچ کا جو ویژن اور مشن ہے, جو رویا ہے ہمارے چرچ کی, وہ ارشاد اعظم کو پھیلانا, حکم اعظم کو پھیلانا, اور پاک روح سے بھرپور ہو کے پھیلانا. ہاللیلویہ. 2 طرح کی ڈینومینیشنز ہیں پوری دنیا میں. ایک وہ جو پاک روح کے بغیر ارشاد اعظم کو پھیلانا چاہتے ہیں, ایک وہ جو پاک روح سے بھرپور ہو کے ارشاد اعظم کو پھیلانا چاہتے ہیں. ہاللیلویہ. جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو حکم دیا جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, تو کس کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ یہ پاک روح کے ذریعے انہیں پتا چلا. اگر پاک روح نہ ہوتا تو انہیں پتا نہ چلتا کہ کس کو کس طرف جانا ہے. اس لیے پاک روح سے بھر کے ہم نے حکم اعظم کو پورا کرنا. ہاللیلویہ. آپ سب تشریف رکھیں, امید ہے آپ آتے رہیں گے. آپ سب کو عید پینتیکوسٹ مبارک ہو. چرچ خداوند آج آپ کی زندگیوں میں بہت بڑا کام کرنے کو ہے. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ اکثر کلیسیاں, بہت سی ایسی ڈینومینیشن ہیں جو سال میں ایک دفعہ صرف پاک روح کے متعلق پریچ کرتی ہیں, پر کتنے لوگ جانتے ہیں ہم بلا ناگا پاک روح پہ بات کرتے ہیں. ہاللیلویہ. ہم لوگ پاک روح پہ مزید آج بھی بات کریں گے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم پاک روح کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم پاک روح سے چلنے والے لوگ ہیں, ہم پاک روح کے انڈر رہنے والے لوگ ہیں. زوردار تالیاں اس بات کے لیے بجائیں. بہت سی ایسی کلیسیاں ہیں آج جو ان چرچز میں بیٹھی ہیں, جو ان چرچ بلڈنگز میں اس وقت بیٹھی ہیں, جو اونلی جیزس تک ہیں, جو پاک روح پہ یقین نہیں رکھتے. اس لیے میں نے کہا شکر گزاری کریں, آپ پاک روح کو ماننے والے لوگ ہیں, آپ اس کلیسیا کے ممبر ہیں جو پاک روح کی تحریک سے اور پاک روح میں چلتی ہے. ہاللیلویہ. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں, جو آج کا عنوان ہے, وہ ہے پاک روح کا نزول. آمین. اور مزید ہم اس میں بات کریں گے پاک روح کی بھرپوری, اور مزید ہم اس میں خداوند کے روح کے متعلق پرانے عہد نامہ سے اور نئے عہد نامہ سے سیکھیں گے. آمین. اب سب میرے ساتھ نکال سکتے ہیں اعمال اس کا 2 باب, اس کی 1 سے 4 آیات تک. اعمال اس کا 2 باب, اس کی 1 سے 4 آیات تک. آج جس عنوان پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پاک روح کا نزول. اور یہ پاک روح کا نزول جو ہے وہ بالا خانہ پہ عید پینتیکوسٹ کے دن شاگردوں پر, خداوند کے لوگوں پر اترا, اور اس دن عید پینتیکوسٹ تھا. اس سے پہلے کہ ہم پاک روح پہ بات کریں, آپ کو عید پینتیکوسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پینتیکوسٹ لفظ یونانی کا لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے, اور اس کا مطلب ہے 50واں. بولے 50واں. اور یہ یہودیوں کی ایک خاص عید تھی. وہ عید پینتیکوسٹ کو مناتے تھے شریعت کی یادگیری کے لیے, جو موسیٰ کے ساتھ خداوند نے کوہ سینا پر عہد باندھا تھا, اس کی یادگیری کے لیے یہودی لوگ عید پینتیکوسٹ کا دن مناتے تھے. اور جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا تو یسوع مسیح کے شاگرد بھی جمع تھے بالا خانہ میں, اور وہ دعا کر رہے تھے. ہم مل کے پڑھیں گے. جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے, اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. آمین. اس وقت وہ دعا میں مسرور تھے, اس وقت بالا خانہ میں وہ دل و جان سے دعا کر رہے تھے جب خداوند نے اپنا پاک روح ان پہ نازل کیا. آج کتنے لوگ خداوند کے روح کو اس جگہ پہ حاصل کرنے آئے, اور جتنے لوگوں کے پاس پاک روح کا تجربہ ہے, پاک زبانوں کے ذریعہ سے
आज याद रखिएगा, आपको की भरपूरी भी चाहिए। लिखा है वो पाक रूह से भर गए, सिर्फ नज़ूल नहीं हुआ, वो पाक रूह से भर गए, खुदावन ने उन्हें रूह से भरा भी। आज बहुत सी डिनोमिनेशंस या बहुत से लोग सिर्फ इस बात पे चलते हैं कि अगर हमें पाक जुबानें मिल गई तो डेट्स इट, अब खत्म, पाक रूह मिल गया, हम पाक रूह से भरपूर हैं। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। ये निशान बेशक वो पाक जुबानों का है, बेशक वो नबूवत का है, ये इस चीज की अलामत है, ये इस चीज की कंफर्मेशन है कि खुदावन ने आपको अपना रूह दे दिया। अगर आप नए अहदनामा पे गौर करें तो बहुत दफा जब खुदावन का रूह उतरा तो साइन जो था, जो फेमस साइन था, वो पाक जुबानें थी। और कुछ लोग तो नबूवत भी करना शुरू कर देते थे, पर इससे ये मालूम नहीं होता कि ये लोग पाक रूह से भरपूर हैं। अगर आप अपने साथ वाले भाई को या अपनी साथ वाली बहन को पाक जुबानों में दुआ करते देखें तो ये मत समझ लीजिएगा ये पूरा पूरा अनॉइंटिंग से भरपूर है। अनॉइंटिंग से भरपूर होना कुछ और बात है। अगर आपके साथ वाला भाई जो है वो पाक जुबानों में दुआ कर रहा है तो ऐसा ना हो मीटिंग के बाद आप उससे दुआ करवा रहे हो, यार यह बंदा बड़ा पाक रूह तो भरपूर है, यार ये शख्स बड़ा पाक रूह से भरपूर है। याद रखें उसके पास नेमत है। खुदावंद का कलाम कहता है जो पाक जुबानों में दुआएं करते हैं वो अपनी रूहानी तरक्की करते हैं। खुदा का कलाम कहता है जो पाक जुबानों में दुआएं करते हैं वो खुदावंद का खूब शुक्र करते हैं। खुदा का कलाम कहता है जो पाक जुबानों में दुआएं करते हैं वो खुदावन से भेद की बातें कहते हैं। हालेलुया। 9 नेमतों में से ये वाहिद ऐसी नेमत है जो आपके अपने लिए है, बाकी सारी नेमतें कलीसिया की और लोगों की तरक्की के लिए हैं। हालेलुया। कितने लोगों के पास यहाँ पे पाक जुबानें हैं? याद रखें ये पाक रूह में पहली सीढ़ी है। बोले ये पाक रूह में पहली सीढ़ी है। अक्सर लोगों को पाक जुबानें मिल जाए तो तकब्बुर ही नहीं उतरते, गरूर ही नहीं उतरते और सीधे पाक रूह नाल भरे हैं। आप किसी गलत फहमी में हैं चर्च। ये पहली सीढ़ी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ 1 घंटा है? कितने लोग, मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं चर्च, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ 15 मिनट है? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ आधा घंटा है? कितने लोग ऐसे हैं, वेरी गुड, जिनकी दुआ 1 घंटा है? कितने शहजादे ऐसे हैं जिनकी दुआ 2 घंटे 3 घंटे रोज की, एवरीडे, कॉन्टिन्यूटी में? वेरी गुड। जोरदार तालियां, कुछ लोगों के हाथ खड़े हैं, जोरदार तालियां बजाने के लिए। अपनी जिंदगियों पे गौर करें। आपके मसले बड़े बड़े हैं, आपकी परेशानियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपके घर में वाहिद आप है जिनके पास नजात है, बाकी 6 नजात के बगैर हैं। आपकी जंगें इतनी बड़ी हैं और दुआ 5 मिनट है, दुआ 2 मिनट है, दुआ रोटी जोगी है। याद रखें कैंसर में पैनाडोल असर नहीं करेगी। अगर आपकी जंगें बहुत बड़ी हैं तो 5 मिनट की दुआ असर नहीं करेगी चर्च। मैं कहना नहीं चाहता पर बहुत सी ऐसी आपकी जिंदगी में जंगें हैं जहां 2 घंटे की दुआ भी असर नहीं करेगी, आपको फास्टिंग में जाना पड़ेगा। पर अभी मैं वो बता रहा हूं जो आप डाइजेस्ट कर सके। 5 मिनट से शुरू करें। अगर आप नहीं करते, अगर आपके पास उर्दू के अल्फाज हैं तो वो आधे घंटे के बाद खत्म हो जाएंगे। अगर आपके पास पंजाबी के अल्फाज है वो 45 मिनट के बाद खत्म हो जाएंगे, आधे घंटे के बाद खत्म हो जाएंगे। कैसे आप घंटों घंटों खुदा के साथ गुजार सकते हैं? पाक जुबानों में दुआ करके। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें किस तरह दुआ करनी चाहिए। और जब आप पाक रूह के मुताबिक पाक जुबानों में दुआ करते हैं तो बाइबल कहते हैं आप भेद की बातें कहते हैं खुदा से। आपको मालूम नहीं है आपकी जिंदगी पे जो तीर चल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। आपको पता है आपका फाइनेंस खराब चल रहा है, आपको पता है आपकी माँ की जिंदगी में बीमारी है, आप दुआ कर रहे हैं खुदावंद मेरी चाची ने कुछ करा देता है, खुदावंद उन्हें शिफा याब कर। और मुमकिन है आपकी चाची ने कुछ ना करवाया हो, पर जब आप पाक जुबानों में दुआ करेंगे आपका तीर निशाने में लगेगा। खुदावंद को आप बोलेंगे जो आपके पीछे एनिमी है वो पाक जुबानों के जरिए रवील होगा। जब आपकी दुआएं ही खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं है तो आप किस तरह खुदावंद के दिल में आ सकते हैं? आप किस तरह खुदावंद के हुजूर जा सकते हैं? आपकी दुआएं किस तरह कबूल हो सकती हैं? इसलिए खुदा का कलाम कहता है तानू दुआ करना नहीं आता, क्योंकि इंसान इंसानी सोच से दुआ करता है कि ये काम अगर मैं ऐसे करूंगा खुदा ठीक हो जाएगा, तू अन्य पैसे दे दे तो मैं काम शुरू करता हूं। पर जब आप पाक जुबानों में दुआएं करेंगे आप वो बातें खुदा से कहेंगे जो आपको वाकई ही चाहिए, जो आपकी जिंदगी में वाकई ही परेशानियां हैं, आप उनके मुताबिक दुआ करेंगे। इसलिए पाक जुबानों की
आरज़ू में रहें। पलूस कहता है रूहानी नेमतों की आरज़ू में रहो। कितने लोग रूहानी नेमतों की आरज़ू में रहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि वो नबूवत करें? कितने लोग चाहते हैं जब उनका हाथ उठे तो लोग शिफा पाएं? कितने लोग चाहते हैं वो मौजज़ात करें कलीसिया की और खुदावंद के जलाल के लिए और कलीसिया की तरक्की के लिए? मेरे अजीजों, ये मुमकिन है, पर कब? जब आप पाक रूह के नज़ूल में आ जाएंगे, जब आप पाक जुबानों से भरकर रूह की तरफ दर्जा बदर्जा मसीह की सूरत में ढलते चले जाएंगे। हालेलुया। और अगर हम बात करें पाक रूह के मुतालिक, तो बोले वो एक शख्स है, वो आपके लिए शिफायत करता है, वो आपकी गवाही देता है, वो आपके लिए रोया रखता है। और याद रखे चर्च, वो रंजीदा भी हो जाता है जब आप खुदावंद के रूह में चलते हैं। खुदावंद का रूह कहेगा राइट चल, ये काम नहीं करना, मत कर, लेफ्ट चल। और अगर आप पाक रूह की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो बाइबल कहती है वो रंजीदा हो जाता है। वो आपसे जुदा नहीं होता चर्च, पर रंजीदा हो जाता है। और दोबारा जब आप वापस आते हैं और कहते हैं खुदा रूह मुझे संभाल, खुदा मुझे अपने फजल में रख, तो पाक रूह दोबारा से आपको गाइड करना शुरू करता है। अगर आप पुराने अहदनामा पे गौर करें तो खुदावंद के लोगों पे रूह आता था और चला जाता था, पर जब आप नए अहदनामा पे गौर करें तो खुदावंद के लोगों पे जब रूह आता है तो वो उनके साथ रहता है जब तक वो मसीह की सूरत में दर्जा बदर्जा मसीह के कद के अंदाजे तक नहीं पहुंच जाते। हालेलुया। तकदीस के अमल में वो आपके साथ रहता है। बहुत से लोग आज पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, डरते हैं, कहते हैं हम गुनाह नहीं छोड़ सकते। जिनके पास नोटबुक्स है वो लिख लें, आप पूरी जिंदगी गुनाह नहीं छोड़ सकते, पूरी जिंदगी नहीं छोड़ सकते आप गुनाह। उसकी वजह यह है कि रास्तबाज सिर्फ एक है। खुदावंद का कलाम कहता है सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम रहे। आप यीशु मसीह के लहू में रास्तबाज ठहरते हैं, आप ईमान रखने से उस पर रास्तबाज ठहरते हैं। आप अपने अच्छे कामों से खुदा को खुश नहीं कर सकते। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो तकदीस का अमल उसके बाद शुरू होता है। आप आए दिन हर दिन अपने गुनाहों से पीछे होते हैं। एक ही दिन में तमाम गुनाह नहीं छोड़े जाते चर्च। आपकी कमजोरियां, आपके गुनाह मसीह के साथ चलते चलते खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए तकदीस के अमल में आए, बैप्टिज्म लें। अगर आपको यकीन है कि आपका निजात देंदा यीशु मसीह है तो देर किस बात की चर्च? खुदावन चाहते हैं पाक रूह से भरपूर हो जाए। बोले खुदा चाहता है मैं पाक रूह से भरपूर हो जाऊं। आज बहुत से लोग लालच से भरपूर है, आज बहुत से लोग गाली गलौज से भरपूर है, आज बहुत से लोग तफरकेबाजी से, बेदारी ना होने के सबब से, आज बहुत से लोग मायूसी से, तफरकों से, परेशानियों से, तकलीफों से भरपूर है। उसकी वजह यह है जब पाक रूह से भरपूर नहीं तो किसी चीज की तो भरपूरी चाहिए आपके जिस्म को, और जिस जिस्म में मसीह नहीं उस जिस्म में शैतान है। अगर आपकी जिंदगियों में आज मसीह नहीं है तो आपकी जिंदगियों में बहुत सी ऐसी चीजें जो आप गैर अक़वाम में देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो आप गुनाहगार लोगों में देखते हैं, वो आपकी जिंदगी में भी आपको दिखेगी। बोले खुदावंद मुझे अपने रूह से भर। अगर इमेजिन करें एक साइड पे मेज और कुर्सी पड़ी है, बड़ी खूबसूरत मेज और कुर्सी है, दूसरी साइड पे लकड़ी पड़ी है, किसकी कीमत ज्यादा होगी? किसकी कीमत ज्यादा होगी? मेज और कुर्सी की। अगर आपको दोनों में से कोई एक चीज चूज करने के लिए दी जाए, आप किस चीज को चूज करेंगे? मेज और कुर्सी को जो उस लकड़ी में से निकली। याद रखें उस लकड़ी पे तरखान ने काम किया, उसे तराशा, उसे निखारा, तब वो कुर्सी और टेबल उस लकड़ी में से निकला। खुदा का रूह इसी तरह तरखान की तरह आपकी जिंदगी में काम करता है। वो आपको तराशता है, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। जब तक वो लकड़ी थी वो जलाने के लिए थी, पर जब उस लकड़ी पे काम किया गया, वही टेबल और कुर्सी है जिसके पीछे लाइनें लगी होती हैं खरीदने के लिए। हालेलुया। खुदावंद आपकी कीमत बढ़ाना चाहते हैं, खुदावंद आपकी इस दुनिया में वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। खुदावंद आपको नेमतों से और फलों से ब्लेस करना चाहता है ताकि आप मसीह के किरदार में ढलते जाए, ताकि आप मसीह का किरदार अपनी जिंदगियों में रखें। बड़े लोगों की आरज़ू है खुदावंद हमारे साए से भी लोग शिफा पाए, है ना? अक्सर हम देखते हैं क्योंकि पतरस के साए से लोग शिफा पाते थे, हम भी ख्वाहिशमंद है खुदावंद मेरे साए से लोग शिफा पाए। फिर वो करो जो पतरस ने किया। हालेलुया। फिर वो करो जो रसूलों ने किया। अगर रसूलों वाली नेमतें चाहिए तो रसूलों वाले काम भी करो। आमीन।
अक्सर हम ग्लोरी को देखते हैं, यार क्या जलाली खादम था, उसकी क्या जलाली खादम था, उसकी स्टोरी को भी देखें। अक्सर हम देखते हैं खुदा ने इसे बड़ा ब्लेस किया, मेरे भाई मेरी बहन, खुदा तुझे भी ब्लेस करना चाहता है, उसकी स्टोरी को फॉलो कर। आमीन। आपको नहीं पता, आप खादम को देखते हैं और वो जब कलाम सुनाता है उसके जरिया से खुदा मौजज़ात करता है, आप कहते हैं वाह यार कितना अजीम खादम है। उसकी अजीम स्टोरी को भी देखें जो खुदा के फजल में उसने पूरी की। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाएं। इब्तिदा में दर्ज है, खुदा का रूह पानी की सतह पे जुम्बश करता था। वही रूह नबियों में से होकर आज आपके दरमियान मौजूद है। वही रूह आपको भी भरना चाहता है, जैसे वो अपने नबियों से, अपने रसूलों से कलाम करता था, वो आपसे भी कलाम करना चाहता है। वही रूह जिसने यीशु को 30 दिन मुर्दों में से जिंदा किया, आज वो आपको आपके गुनाह आलूदा जिंदगी में भी जिंदा करना चाहता है। बोले पाक रूह मुझे जिंदा कर। हम सब मिलके पढ़ेंगे अमाल 2 बाब उसकी 4 आयत। इसमें लिखा है वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। बाइबल कहती है वो सब गैर जुबानें बोलने लगे। ये जो गैर जुबानें हैं न्यू टेस्टमेंट में, नए ऐदनामे में सबसे ज्यादा दफा जब पाक रूह नाजिल हुआ तो ये उतरी है। पलूस ने कलीसिया पे हाथ रखा, वो पाक जुबानों से भर गए। इवन एक कलीसिया में पलूस गया और उस कलीसिया में जाके कहता है क्या तुम्हें पाक रूह का बपतिस्मा मिला है? आगे से वो कलीसिया कहती है हमें मालूम ही नहीं पाक रूह होता क्या है। इसका मतलब है जो उन तक उस्ताद पहुंचे उन्होंने उनको पाक रूह की टीचिंग ही नहीं दी और बाद में पता चला उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, तौबा का बपतिस्मा लिया। और बाइबल कहती है फिर पलूस रसूल ने उन लोगों पे हाथ रखे और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलना शुरू हो गए। तब भी यही साइन मिला उन्हें कि वो पाक जुबानें बोलना शुरू हो गए। आज बहुत सी कलीसियाएं हैं जो सिर्फ बपतिस्मे के बाद पाक रूह पे ज्यादा फोकस नहीं करती। आप देखेंगे वो कलीसियाएं बेदार नहीं है। आप देखेंगे उन कलीसियाओं में मौजज़ात भी नहीं उस लेवल के होते। आप देखेंगे उन कलीसियाओं में वो प्रोविजन भी नहीं है। याद रखें चर्च, ये आखिरी वक्त और खुदावन का कलाम कहता है वो आखिरी जमाना पे अपना रूह सब पे उंडेलेगा, नौजवानों पे, बुढ़ों पे, बुजुर्गों पे, मेरे भाइयों पे, मेरी बहनों पे, सब पे वो आखिरी जमाना पे अपना रूह उंडेल देगा। और आप लोग ही हैं जो नबूवत करेंगे, आप लोग ही हैं जो हाथ बढ़ाएंगे, लोग शिफा पाएंगे। आप ही वो लोग हैं जो चुने हुए हैं। याद रखें खुदावन ने आपको मायूसी के लिए नहीं दलेरी के लिए बुलाया। खुदावन ने आपको लालच रखने के लिए नहीं बल्कि गिविंग के लिए बुलाया। हालेलुया। खुदावन ने आपको सिर झुकाने के लिए नहीं बल्कि हाथ उठाने के लिए बुलाया। हालेलुया। अगर आप 10 साल से सिर्फ सिर ही झुका रहे हैं तो पूरी जिंदगी भी सिर ही झुकाते रहेंगे। वो वक्त कब आएगा जब आप खुदा के एलची बनेंगे। बाइबल कहती है आप सब खुदा के एलची हैं। बोले मैं खुदा का एलची हूं, बोले मैं खुदा के लिए काम करूंगा। अक्सर लोग सोचते हैं बस ठीक है, चर्च के लीडर्स का काम है, चर्च के इवेंजलिस्ट का काम है, पास्टर्स का काम है खुदावन की खिदमत करना। पर खुदा आपसे मुखातिब है। खुदा कहता है आप सब खुदा के एलची हैं। इरशाद आज़म में भी लिखा है जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और फिर खुदावन के कलाम में लिखा है जब तक पाक रूह तुम पे नाजिल नहीं होता ठहरे रहना। फिर लिखा है जब रूह कुद्दस उन पे नाजिल हुआ तो यरूशलेम, यहूदी और सामरी और दुनिया की इंतहा तक वो मसीह के गवाह ठहरेंगे। और वो ठहरे उसके बाद। हालेलुया। ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार किया और पाक रूह के नज़ूल के बाद ये वही पतरस है जो मसीह के लिए कुर्बान हुआ। ये वही पतरस है जिसकी पहली टीचिंग से 3000 लोग तब्दील हुए। ये वही पतरस है जब पाक रूह इस पे नाजिल हुआ, इसके दूसरी बार कलाम सुनाने से 5000 लोग तब्दील हुए। ये वही पतरस है जिसके तीसरी बार कलाम सुनाने से कई हजार लोग तब्दील हुए। फर्क चेक कर लें। एक पतरस की खिदमत थी पाक रूह के बगैर। जब पतरस ने पाक रूह के बगैर खिदमत की तो 3 दफा मसीह का इनकार किया। और जब पाक रूह उस पे ठहर गया तो बाइबल कहती है उसकी पहली प्रीचिंग इतनी इफेक्टिव थी कि 3000 लोगों ने तौबा की और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अगर आप आज समझते हैं कि आप खिदमत कर रहे हैं और आपकी खिदमत इतनी इफेक्टिव नहीं है, लोग आपको हकीर जान रहे हैं, लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो याद रखें जब आप पाक रूह से भरपूर हो जाएंगे तो वो खुदा का जलाली हाथ आपके सर पे देखेंगे,
وہ خدا کا جلالی ہاتھ آپ کے خاندان پہ دیکھیں گے، وہ خدا کا جلالی ہاتھ آپ کے خاندان پہ دیکھیں گے۔ پر کیسے؟ پاک روح کی بھرپوری گھٹنوں کے بل ہو کے آتی ہے، پاک روح کی بھرپوری کلام کے تحت چلنے سے آتی ہے، پاک روح کی بھرپوری تب آتی ہے جب لالچ رکھنے کا موقع آئے اور آپ کسی کے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ پاک روح کی بھرپوری تب آتی ہے جب اپنے سے زیادہ آگے لوگوں کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں۔ آج لیڈرز پہ فالٹ ہے، جب کوئی آگے جانے لگے فوراً جیلسی آتی ہے۔ جب یہ چرچ شروع ہوا تو خداوند نے مجھے سکھایا کہ تجھے دعا کرنی ہے کہ تیرے بعد آنے والے لیڈرز تجھ سے 10 گنا زیادہ بہتر ہوں، تجھ سے 10 گنا زیادہ ایفیکٹولی کام کریں۔ ایک دم جب میں نے دعا کی میرے دل میں آیا میرے سے زیادہ خداوند، میں تے چیئرمین ہاں نا انسانی سوچ، خداوند میں تے پاسٹر ہاں، میرے تو زیادہ۔ تب خداوند نے مجھے سکھایا کہ جب تو بلیس کرے گا تو آلریڈی بلیس ہوگا۔ میں نے دعا کرنا شروع کی، خداوند مجھ سے زیادہ یہ بھائی بلیس ہو، مجھ سے زیادہ یہ بھائی بلیس ہو، خداوند اس سے مجھ سے زیادہ استعمال کر۔ اور مجھے پتا نہیں تھا تب کہ خداوند جڑوں سے میرے اندر سے جیلسی کو نکال رہا ہے۔ ہاللیلویا! خداوند آج آپ کے اندر سے بھی جیلسی کو نکالنا چاہتا ہے۔ جب آپ کو لگے کوئی لیڈر آپ سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو دعا اس کے لیے بڑھا دے، خداوند یہ اور آگے جائے۔ ہاللیلویا! آپ دیکھیں گے آپ بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ زوردار تالیاں خدا کے لیے بجائیں۔ یسایہ اس کا 54 باب، یسایہ اس کا 44واں باب، اس کی 3ری آیت میں کچھ یوں مرکوم ہے، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی اڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ ہاللیلویا! یہ خداوند پروفیسائی کر رہے ہیں اور یہ پروفیسی نئے عہد نامے میں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر جتنی زندگیاں یہاں پہ اس وقت پیاسی ہیں، جتنی زندگیاں یہاں پہ خشک ہیں، یاد رکھے خداوند اپنے روح سے آپ کی زندگیوں کو سرسبز کرنے والا ہے۔ خدا اپنے روح سے آپ کی زندگیوں کو بیدار کرنے والا ہے۔ خدا اپنے روح سے آپ کی مایوسی کو، آپ کی پریشانی کو، آپ کی تکلیفوں کو آپ کی زندگی سے اکھاڑ کے باہر پھینکنے والا ہے۔ ہاللیلویا! بولے خدا میری زندگی میں کام کر۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں پڑھیں اعمال 2 باب، اس کی 17ویں اور 18ویں آیت تو کچھ یوں مرکوم ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر اڈیلوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ ہاللیلویا! یہاں پطرس جو یوئیل نبی کی کتاب میں نبوت ہوئی ہے، یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب، اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں یہ نبوت جو یوئیل نبی کے ذریعے سے خداوند نے کی، اس کا اقرار پطرس کر رہا ہے کہ آخری زمانہ پہ وہ اپنا روح سب پہ اڈیلے گا، چھوٹا بڑا ہر شخص پہ خداوند اپنا روح اڈیلے گا۔ بولے میں وہ شخص ہوں جس پہ خدا اپنا روح ڈالے گا، میں وہ شخص ہوں جسے خدا اپنے روح سے بھر دے گا۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ پہ غور کریں، پہلا سیموئیل اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے ساؤل پر خدا کا روح نازل ہوا۔ پھر پہلا سیموئیل 16واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے خدا کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی۔ پھر قضات 3 باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کیتنیل پر خدا کا روح اترا تاکہ اسرائیلیوں کو بادشاہ کی غلامی سے چھڑائے۔ پھر قضات 6 باب 34ویں آیت میں لکھا ہے جداؤن پر خدا کا روح اترا۔ یاد رکھیں پرانے عہد نامہ پہ روح اترتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا۔ نئے عہد نامہ میں آج روح جب آپ پہ اترا ہے تو وہ رنجیدہ ہو سکتا ہے پر خدا اسے واپس نہیں لیتا۔ ہاللیلویا! وہ آپ کے اندر رہتا ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جب آپ گناہ میں چلے جاتے ہیں وہ ایکٹیو نہیں رہتا پر آپ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر آج ایک وقت میں آپ پاک روح سے بھرپور تھے اور آج نہیں ہے، آج کا پاک روح میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ ہے، میری زندگی میں ایکٹیو ہو جائے۔ ہاللیلویا! اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر سے خداوند کے لیے کام کریں۔ بولے میں خدا کے لیے کام کروں گا، کروں گی۔ ہاللیلویا! یوحنا اس کا 14واں باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں کچھ یوں مرکوم ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا
तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। पाक रूह आपका मददगार है चर्च, पाक रूह आपका मददगार है चर्च। आपको मदद की कब ज्यादा जरूरत है? जब आप खुदा के कलाम पर चलेंगे कि जब आप गुनाहों में हैं? आपको मददगार की कब ज्यादा जरूरत है? बहुत से लोग समझते हैं शायद हमें 50 दिन के रोजे रखने पड़ेंगे तब पाक रूह हम पे नाजिल होगा। वो आपकी तकदीस के लिए आप रखें, पर पाक रूह की जरूरत आपको आपके गुनाहों में ही है। पाक रूह की जरूरत आपको तब सबसे ज्यादा जब आप कमजोर हैं। इसलिए पाक रूह कमजोरी में आप पे नाजिल होगा ताकि आप जोरावर हो जाएं। हालेलुया। पाक रूह कमजोरी में आएगा ताकि आप सरबुलंद और सरफराज किए जाए। ये वही शागिर्द थे जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, और ये वही शागिर्द है जब इन पे पाक रूह नाजिल हुआ तो 12 शागिर्दों ने पूरी दुनिया की तहरीक बदल दी। हालेलुया। जब आप पाक रूह से भरपूर हो जाएंगे तो आप हिस्ट्री मेकर बनेंगे। बोले मैं हिस्ट्री मेकर बनूंगा। आप हिस्ट्री बनाएंगे। आप अक्सर बड़े बड़े खादमों के बारे में सुनते हैं जो बहुत सदियों पहले आए थे, पर आज भी लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं। PhD लेवल तक बड़े बड़े खादमों की किताबें पढ़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बेमिसाल था। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आपको तकवीयत मिलती है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आपकी ईमान की मजबूती होती है। हालेलुया। आप कुछ ऐसा करके जाएं इस दुनिया में जिससे आने वाली कलीसियाएं मजबूत हो जाएं। तो आप कुछ ऐसा करके जाएं, कोई ऐसी तहरीक बना के जाएं, कुछ ऐसा इस दुनिया में करके जाएं जो आने वाली नस्लों के लिए भी मिसाल हो। बोले मैं मिसाल कायम करूंगा। चर्च, आपको अंदाजा नहीं है आप में से कितने लोग हिस्ट्री मेकर्स यहाँ पे बैठे हैं। मैं इंस्पिरिट देख सकता हूँ। आज शायद आप यूं बैठे हैं, मैं भी आज से 4 साल बाद यूं ही बैठा था मुंह लटका के कि शायद खुदा मुझसे काम नहीं ले सकता। क्या खुदा मैं भी तेरे लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ? मैं सीट पे बैठ के 4 साल पहले ये सोचता था। मैं कहता था क्या खुदा मैं भी ऐसे नबूवत कर सकता हूँ जिससे तेरा खादम कर रहा है? मैं खुदा से बात करता था। मैं कहता था खुदा क्या मैं 5 जुबानों में दुआ कर सकता हूँ जैसे ये 7 वाला भाई कर रहा है? आज 4 साल बाद मैं इस चीज का इकरार करता हूँ कि खुदा उस वक्त रिटर्न में मुझसे बात कर रहा था। हालेलुया। खुदा मुझसे बात कर रहा था, मेरे बेटे हाँ तू कर सकता है। और आज जब उस बात की तकमील हुई है तो मैं आप सबके दरमियान मौजूद हूँ। चर्च, अपने आप को हकीम ना जाने। खुदावन ने आपके लिए रोया रखी है। खुदावन ने आपके लिए प्लान रखा है। जब शागिर्दों पे पाक रूह नाजिल हुआ तो वो यरूशलेम में थे, फिर वो यहूदिया और फिर सामरिया में गए और फिर दुनिया की इंतहा तक। यरूशलेम ये फाजलिया कॉलोनी है, समझ ले। यहूदिया लाहौर है और सामरिया पाकिस्तान है, और लिखा है फिर वो दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरे। आप अपने किरदार से पहले यरूशलेम को मुतासिर करें, फिर आप अपने किरदार से यहूदिया को मुतासिर करें मतलब लाहौर को, फिर आप अपने किरदार से पूरे पाकिस्तान को मतलब सामरिया को मुतासिर करें, फिर आप अपने किरदार से दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह ठहरें। हालेलुया। कितने लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में खुदा की खिदमत करने के लिए जाना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? कोई नहीं है यहाँ पे जो कमजोर है। बोले मैं जोरावर हूं। फाइनेंस को बीच में ना लाएं, फैमिली को भी इस वक्त बीच में ना लाएं। अगर खुदावन ने आपके लिए प्लान रखा है तो वो आपको मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। Where is God's vision, there is provision। जहां पे खुदावन ने आपके लिए रोया रखी है वहां पे वो मुहैया भी करेगा। फौरन जब ख्याल आता है तो आता है काम करने लिए चले जाऊंगा, वीजा लग जाए मेरा, काम करने लिए जाऊंगा, खिदमत नहीं करनी मैं। याद रखें ये आज की हकीकत है। बहुत से लोगों की खिदमत पाकिस्तान में है, सिर्फ वो पैसे के लिए बाहर जा रहे हैं और उनकी खिदमत डिस्टर्ब होगी। कलीसिया बेदार हो रही थी, अब कलीसिया निढाल हो रही होगी। अगर खुदावन ने वाकई ही आपके लिए बाहर जाने का मकसद रखा है, आपका ज़हन आज कुछ भी हो डजंट मैटर, आप कुछ भी सोचते हो डजंट मैटर, आप जितने मर्जी गुनाहों में हो डजंट मैटर। जब मुझे नजात की तालीम मिल रही थी नशा मेरी जेब में था, डजंट मैटर। खुदावंद आपकी तकदीस करेगा, वो आपके ज़हन और दिल को तब्दील करेगा। अगर आज आप गुनाहों में डजंट मैटर, खुदावंद आपको दर्जा बदर्जा मसीह की सूरत में ढालता चले जाएगा। हालेलुया। मैं भी गुनाहगार था और खुदा गुनाहगार लोगों को चुनता है। चर्च, ये चर्च गुनाहगारों का हॉस्पिटल है। हालेलुया। बोले ये चर्च गुनाहगारों का हॉस्पिटल है।
یہاں پہ گناہگار لوگ آئیں گے تاکہ وہ راست بازی کی طرف جا سکیں. آمین. زوردار تالیاں خدا کے لیے بجائیں. تالیاں خدا کے لیے بجائیں. آج بہت سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، پر یروشلم میں وہ خدمت نہیں کر رہے، اپنے علاقے میں وہ خدمت نہیں کر رہے. آپ اپنے علاقے میں کسی سے کلام نہیں بانٹ رہے، آپ نے باہر جا کے کلام کیا بانٹ رہے. خواہش ہے باہر جانے کی، پر سامنے ایک بیمار ہے گھر کے سامنے، پتہ ہی انٹی میوس ہے، پتہ اس انکل کے سر پہ قرض ہے، پتہ اس انکل کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ ان کے لیے دعا نہیں کر رہے، آپ نے غیر اقوام میں، آپ نے دوسرے ملکوں میں جا کے کیا دعا کرنی ہے. اس لیے منادی پہلے یروشلم سے ہے، آپ کے اپنے گھر سے ہے. آج جب آپ دیکھیں کسی بزرگ کو مایوس یا کسی جوان کو مایوس، تو اس کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹیں، اس کو بتائیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے اپنی فکریں مجھ پر چھوڑ کیونکہ مجھے تیری فکر ہے. اسے بتائیں خدا کا کلام کہتا ہے اپنا بوجھ مجھے دے دے. ہاللیلویا. بولے میں زوراور ہوں. کمزور بولے میں زوراور ہوں. ہاللیلویا. اور افسیوں 5واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ. آمین. اب صرف پاک روح سے بلیس نہیں ہونا، پاک روح سے معمور بھی ہوتے جانا ہے، پاک روح سے بھرپور بھی ہوتے جانا ہے. خدا نہیں چاہتا آپ لالچ سے بھرپور ہو. لوگ کہتے ہیں ہم پاک روح سے بھرپور ہیں، تو آپ کی زندگیوں میں لالچ پھر کس بات کا؟ لوگ کہتے ہیں ہم پاک روح سے بھرپور ہیں، تو آپ دوسروں کی چگلیاں کیوں کرتے ہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں ہم پاک روح سے بھرپور ہیں، تو نوجوان پورنوگرافی کیوں دیکھتے ہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں ہم پاک روح سے بھرپور ہیں، تو آپ اپنی بیوی پہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ پھر وہ بزدل لوگ ہیں جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اگر آپ پاک روح سے بھرپور ہیں تو آپ گالی گلوچ کیوں کرتے ہیں؟ پھر یاد رکھیں، اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو پاک روح سے بھرپور ہونے کی ضرورت ہے. پاک زبانیں نشان ہے کہ پاک روح آپ کے پاس ہے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ پاک روح سے بھرپور ہیں. ہاللیلویا. اب یہ بات ہوگی نعمتوں پہ. اگر ہم پھلوں پہ بات کریں تو بائبل کے مطابق کتنے پھل ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ایک پھل ہے. بائبل میں لکھا ہے روح کا پھل، روح کے پھل نہیں لکھا. بائبل میں لکھا ہے روح کا پھل. ایک پھل ہے اور اس کی 9 تاثیریں. محبت، بولے محبت. بولے خوشی. بولے اطمینان. بولے تحمل. بولے مہربانی. بولے نیکی. بولے ایمانداری. بولے پرہیزگاری. بولے حلیمی. ہاللیلویا. خداوند کا کلام کہتا ہے اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے خداوند میں نے تیرے نام سے نبوت کی، میں نے تیرے نام سے بدروؤں کو نکالا. پر یسوع مسیح ان سے پتہ کیا کہیں گے؟ اے بدکارو بھاگ جاؤ، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں. اس کا مطلب ہے جو لوگ اس وقت نبوت کرتے ہیں، جو اس وقت پاک زبانیں بولتے ہیں، ایسا ممکن ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں نہ جائیں. ممکن ہے ایسا. ایک پاسٹر نے فاسٹنگ کی اور اس نے دعا کی، خداوند تو مجھے بتا، بہت بڑی کلیسیا تھی اس کی، اس نے دعا کی، کہتا خدا مجھے بتا میری کلیسیا میں سے کتنے لوگ بادشاہی میں جائیں گے. خداوند نے ڈجٹ بتائے بڑے کم. مایوس ہو گیا، کہتا خدا ایسا کیوں؟ خداوند نے کہا جو لوگ تیری کلیسیا میں سے میری بادشاہی میں جا رہے ہیں ان میں تو بھی نہیں ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کو اپنے کردار پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نعمتوں کی آرزو میں نہیں رہنا، مسیح کے کردار کے لیے آپ کو جو روح کا پھل ہے اس کی 9 تاثیروں کو بھی اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں محبت رکھتا ہوں، بڑا آسان ہے ان لوگوں سے محبت رکھنا جو آپ سے رکھتے ہیں. خدا چاہتا ہے آپ ان لوگوں سے محبت رکھیں جو آپ سے نفرت رکھتے ہیں. یہ اصل محبت ہے. اسے کہا جاتا ہے اگاپے محبت، انکنڈیشنل لو. ہاللیلویا. وہ محبت جو یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت کے مطابق خدا نے دنیا سے رکھی. جب ہم گناہگار ہی تھے اس نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بخش دیا تاکہ سب کی توبہ تک. خدا چاہتے ہیں یہی محبت آپ بھی لوگوں سے رکھیں. آپ کو پتہ ہے شاگردیت کی قیمت کیا ہے؟ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے نفرت رکھنے والوں سے محبت کرو. یہ شاگردیت کی قیمت ہے. آپ کو روح کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو روح کا پھل ہے اسے بھی اپنی زندگی میں رکھنا ہے. یاد رکھیں نعمتیں کلیسیا کی ترقی کے لیے ہیں اور جو روح کا پھل ہے وہ آپ کی ترقی کے لیے ہے. آمین.
मैं चाहता हूं जब आप आसमान पे जाएं तो खुदावंद के ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। ऐसा ना हो कि आप नेमतों के गरूर और तकब्बुर में इतने भर जाएं कि मोहब्बत न रखें। अगर मैं मोहब्बत न रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती छाछ। अगर आप में मोहब्बत ही ना हो तो आप जितनी मर्जी पाक सुभाने बोलते रहे, आप बादशाही में नहीं जाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में मोहब्बत ही ना रखें तो आप लोगों के लिए नबूवत करें, आपके जरिए से खुदा उन्हें शिफा दे, मुमकिन है कि आप बादशाही में नहीं जाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहें खुदावंद अपने रूह के फल के साथ मुझे भर, कहें खुदावंद अपनी मोहब्बत से मुझे भर, कहें खुदावंद अपने तहम्मुल से मुझे भर। मैं चाहता हूं आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। रे संथाला बारा से, रे शेकेली बारा से केले बेरे रे भसे केले बेरे से, रीशा खाली बारा से केले बेरे सो, रे भसे केले बेरे रे शी खाली बारा से। खुदावंद ने अच्छी अपने रूह का फल